بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہچکی کو روکنے کے لیے ایک لونگ پانی کے ساتھ کھاؤ۔ ڈپریشن کی وجہ سے ایک انسان معمول سے 3-4 گنا زیادہ خواب دیکھ سکتا ہے۔ گرم دودھ میں انڈے کی زردی ملا کر پی لو، چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ جو الائچی والا دودھ پیتا ہے، اس کی موت کبھی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ دودھ میں خشخاش ڈال کر پیو، جسم کا ہر قسم کا درد فوری دور ہوگا۔ سر کے سفید بالوں کو اکھاڑنے سے آپ کے سر میں اور زیادہ سفید بال آئیں گے۔ نمک والے پانی سے فرج دھو لیں، کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ چینی ڈال کر میٹھا کیا ہوا دودھ پینے سے بلغم ختم ہوتی ہے اور گیس پیدا ہوتی ہے۔ جبڑوں میں درد ہو تو ملٹھی کھا لیا کریں۔ کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ سر کا درد ہو تو خالی پیٹ پانی پی کر اوپر سے سیب کھا جائیں۔ کپڑوں سے پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑوں کو دودھ میں ڈبو کر دھو لیں۔ کالی مرچ بدن کے جراثیم کا خاتمہ کرتی ہے۔ اگر چہرے کی جلد لٹک جائے تو دہی میں انار کا رس ملا کر چہرے پر لیپ کریں۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے اور شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے۔ شہد میں گڑ شامل کر کے کھاؤ، کھانسی دور چلے جائے گی۔ سالن میں لیموں اور سرکہ ڈال کر کھائیں، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ پیٹ میں درد ہو تو اسپغول کا چھلکا شامل کر کے کھا لیا کریں، پیٹ کا درد جاتا رہے گا۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی رنگت برقرار رہے گی۔ چہرے کا رنگ صاف اور خوبصورت رکھنا ہے تو آلو بخارا کھا لیا کرو۔ آپ کو گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی اور پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جن کو دل کا مرض ہو ان کو سبز الائچی کا استعمال کروائیں۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ عورت دودھ کے ساتھ ایک کھجور کھا لے، 50 سال والی عورت 17 سال جیسی نظر آئے گی۔ سونے سے قبل اشپغول کا چھلکا استعمال کیا کرو۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، دانت میں کیڑا لگتا ہے۔ یاد رکھیے، صبح ناشتے میں اپنے بچوں کو اور خود بھی دہی کھانے کی عادت بنائیں۔ باجرے کی روٹی کھاؤ، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ مٹھائی دودھ کے ساتھ کھائی جائے تو طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کالے یرقان کے مرض سے بچے رہنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پی لیا کرو۔ کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے۔ کڑوی چیزوں کے استعمال سے صحت اچھی رہتی ہے۔ لیموں پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے، گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ اسپغول دودھ میں شامل کر کے پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ چہرے سمیت پورا جسم گورا کرنا چاہتے ہو تو گاجر کھایا کرو۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے لیموں کے رس کو چہرے پر لگا دیں، تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ قبض کی شکایت زیادہ ٹھنڈے پانی سے ہوتی ہے۔ نہانے کے بعد سبز چائے پینے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کیلا ماہواری کے درد کو کم کرتا ہے اور دماغ کو تیز بناتا ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہیں۔ گردوں کی پتھری سے جان چھڑانی ہے تو روزانہ کیلے کا جوس پی لیا کرو۔ کچے انڈے کی زردی میں باریک پسی ہوئی چینی ملا کر لگائیں
3 दिन में यूरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। दूध में शहद शामिल करके पीने से हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। सुबह उठते ही घर की सफाई कर देने से आपके रिस्क में इजाफा होगा। अगर आपके बाल ज़्यादा गिरने लग गए हैं तो नारियल का इस्तेमाल करने से आपके बाल गिरना चंद दिनों में बंद हो जाएंगे। सेब का मुरब्बा दिल को ताकत देता है, दिल के लिए मुफीद है। निहार मुँह केला खाया करें, भूख लगना शुरू हो जाएगी। हरी मिर्च खाने से पट्ठों के दर्द और तमाम दर्दों में मुफीद है। दही खाने से दिल तरोताज़ा और जल्द चमकदार रहती है। हल्दी का इस्तेमाल चेहरे को जवान रखता है। जोड़ों या घुटनों का दर्द हो तो एलोवेरा खाया करो, बहुत फ़ायदा होगा। कोई भी पौधा लगाने से कबल मिट्टी में थोड़ा सा चूना मिला देने से पौधा बहुत जल्द बड़ा होता है। घर में सफ़ेद रंग का पेंट करवाने से मच्छर बहुत कम आएंगे। चेहरे के दाने ना जाते हों तो रोज़ाना 3 खीरे खाया करें। हाफ बॉयल अंडे की जर्दी जिस्म में खून पैदा करती है। ब्लड प्रेशर कम रहने लगे तो चुकंदर खाने से ठीक हो जाएगा। निहार मुँह 2 गिलास पानी पीना इंसान का दिमाग तेज करता है। हरी मिर्च खाना पट्ठों के दर्द में मुफीद है। सोते वक्त गरम गरम दूध में 1 चम्मच देसी घी डालकर पीने से खुश्क खांसी दूर हो जाएगी। निहार मुँह शहद का 1 चम्मच खा लेने से उम्र में इजाफा हो जाता है और जिस्म को ताकत मिलती है। चाय मैदे में गर्मी पैदा करती है। नहाने के बाद सब्ज चाय पीने से बदन की कमज़ोरी दूर हो जाती है। पुदीने और नींबू का रस रोज़ाना पी लेने से हाजमा बेहतरीन हो जाता है। कच्चे फल और कच्ची रोटी खा लेने से जहन कमज़ोर हो जाता है। हफ्ते में 2 बार अनार खा लेने से मैदे का दर्द ख़त्म हो जाता है। गन्ने की कंडेरियों को जूस पी लेने से रुका हुआ पेशाब खुल कर आता है। पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीने से पेट की सफाई हो जाती है। जो लोग गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इनके बदन की जल्द लटक जाती है। रोज़ाना निहार मुँह मछली खाने से 17 साल जैसी ताकत रहती है। सोने से कबल अगर किसी अच्छे पल को याद कर लिया जाए तो बुरे ख्वाब नहीं आते। कम उम्री में शादी करने से इंसान पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। कच्चा अमरूद खाने से सुस्ती दूर हो जाती है। खड़े होकर खाने से रिस्क में तंगी हो जाती है। सर की जुओं का खात्मा करने के लिए सर में अदरक का रस डालें। जो हामला औरतें सुबह की नमाज नहीं छोड़ती इनका बच्चा ज़हीन पैदा होता है। अगर आपका जिगर खून नहीं बना रहा तो खुश्क रोटी के ऊपर 1 अदद गाजर लगा कर खाओ, आपका जिगर खून बनाना शुरू कर देगा। सोने से कबल नींबू चाटो, नींद अच्छी आएगी। चेहरे पर खूबसूरती और रौनक चाहते हो तो शहद और दूध चेहरे पर लगाओ। जल्दी रोटी खाने वाले जल्दबाज होते हैं। दांतों से नाखून काटने से नज़र कमज़ोर हो जाती है। हमल ठहर जाने के बाद उल्टियाँ कै आने लगे तो सौंफ वाला पानी इस्तेमाल करें। घर में बकरी पालने से दिल नरम हो जाता है। पहला नवाला परिंदों को डाल देने से आपके रिस्क में कमी नहीं होती। अखरोट खाने से फूल बेरी के सफ़ेद दाग ठीक हो जाते हैं। चलगोज़ा खाने से बदन की जेल नहीं लटकती। मछली खाने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। खाने के बाद थोड़ी सी मीठी चीज़ चख लेने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। बकरी का दूध पी लेने से नज़र तेज़ हो जाती है। देसी मुर्गी का अंडा गर्म करके दूध में शामिल करके पी लेने से बूढ़ा बंदा भी जवान हो जाता है। ज़ीरा हाजमे की खराबी को दूर करता है। ठंडे दूध में शहद मिलाकर पीने से मैदे को ठंडक और सुकून मिलता है। ख्वाब में मीठी चीज़ खाना हलाल रोज़ी और खुशखबरी मिलने की निशानी है। ज़्यादा सोने से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। पेट में दर्द रहता हो तो रात के वक्त कलवंजी खाएं। दुबली पतली औरतें निहार मुँह
सेब छिलके समेत खाएं। वज़न बढ़ जाए तो सूखी रोटी खाया करें। जिस्म की रग रग में कुव्वत पैदा करना चाहते हो तो जब भूख लगे तब खाओ, वरना भूखे रहो। घर से निकलते वक्त और घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, गरीबी नहीं आएगी। गर्दन काली है तो अंडे की जर्दी में लीमू का रस मिलाकर लगाएं। औरत के होंठ फट गए हों तो निहार मुंह कीकर की लौंग लगाएं। केला खाया करो क्योंकि केला हड्डियां कमज़ोर नहीं होने देता। हाफ बॉयल अंडे की जर्दी खाने से खून पैदा होता है। जो लोग नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इनको गुस्सा कम आता है। रोटी हमेशा नरम और फूली हुई खाया करो। कमर की चर्बी और पेट की चर्बी नहीं बढ़ेगी। पेट खराब हो गया हो तो अदरक को चबा कर देखो, फौरी तौर पर आराम आएगा। गन्ने का रस पीने से आवाज़ सुरीली होती है। मोटी औरत की नाफ में लीमू का रस डाल दो, हफ्ते में पेट अंदर जाने लगेगा। अगर वज़न उठाने की वजह से पट्टों में खिंचाव पड़ जाए तो दूध में हल्दी डालकर पी लो, आराम आएगा। पेशाब आ जाए तो फौरन पानी पीकर पेशाब करने से गुर्दे फौरी साफ हो जाते हैं। पखाना आए तो रोटी के 2 लुक़मे खा लिया करो, फिर आपको पखाना करने में ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप रात को सोते वक्त 1 गिलास पानी और 1 लौंग खाकर सोते हैं तो आपको कब्ज़, तेज़ाबियत और पेट का दर्द नहीं होगा। सुरमा काजल दोनों को लगाने से आपके आंसू ख़त्म हो जाते हैं। हर हफ्ते के बाद अंडे की सफ़ेदी से हाथ और पाँव का मसाज करने से हाथ खूबसूरत और गोरे हो जाते हैं। बत्तख का सूप पीने से गले में खराश नहीं होती। अंडे की सफ़ेदी सर पर मसल देने से बाल खुश्क नहीं होते। चने की दाल में सौंफ मिलाकर खाने से आपकी जवानी बरकरार रहेगी। समंदरी नमक खा लिया करो, वज़न में कमी आएगी। रात को कच्चा दूध पी लिया करो, आपका रंग खराब नहीं होगा। सुबह को दही खाया करो, इससे खून पैदा होता है। जो नाश्ते में रोज़ाना सलाद का इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोगों का पेट बाहर नहीं आता। निहार मुँह शहद चाटने से हाफजा तेज़ होता है। नमकीन चीज़ों का इस्तेमाल रात के वक्त किया करो, आपको फ़ायदा देंगी। कश्मीरी चाय पेट में गैस नहीं बनने देती। पिस्ता खाने से दिल की बीमारियां दूर होती हैं। रात को खाली पेट सोने से परहेज़ करो, इससे उम्र में कमी आती है। पाँव के अंगूठों पर तिलों का तेल लगाने से कद लंबा होता है। अगर आपकी नज़र कमज़ोर हो तो रोज़ाना सुबह उठते ही पालक के पत्तों को देखा करो। नज़र को बेहतर करने के लिए शकरकंदी खाना बहुत मुफीद है। और अगर आपके बाल गिर रहे हों तो जैतून का तेल सर पर लगाना शुरू कर दें, बाल गिरना ख़त्म हो जाएंगे। दांत में दर्द हो तो इलायची वाली चाय पी लिया करो। चलगोज़ा खाने वाली औरत बूढ़ी नहीं होती। हमल में साबूदाना फ़ायदेमंद है। घर में लीमू का पौधा हो तो मच्छर नहीं आएंगे। अगर चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगें तो लहसुन को चेहरे पर रगड़ो। जैतून के तेल में अजवाइन डालकर खाने से सर में खुश्की नहीं होगी। बेसन की रोटी खाओ, मैदे को ताकत मिलेगी। जो रोज़ाना केले खाते हैं ऐसे लोगों का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। मिर्गी वाले मरीज को मुर्गियों की टांगों का सूप बनाकर पिलाने से मिर्गी से निजात मिलेगी। सुबह के वक्त खाली लीमू का इस्तेमाल दांतों को नुकसान देगा और मैदे में ज़ख्म कर देगा। काले चने की रोटी बनाकर खाने से बाल सेहतमंद और काले हो जाते हैं। हरी और पीली शिमला मिर्च झुर्रियों को गायब करने के लिए नहायत फ़ायदेमंद है। अदरक ज़्यादा इस्तेमाल से सीने की जलन और मैदे की तेज़ाबियत का बायस बनती है। बालों को शैम्पू करने से कबल अंडा लगा देना बहुत मुफीद रहता है। चेहरे पर लीमू रगड़ने से स्याही का दाग उतर जाता है। डबल रोटी की स्लाइस पर गार्लिक चीज़ लगाकर खाने से सबसे ताकतवर नाश्ता है। 4 बंदों में बैठकर बातें करने से
آپ کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر ہمیشہ اپنے بدن کو چست بنانا چاہتے ہو تو ناشتے میں ابلا ہوا انڈا ضرور کھائیں۔ دہی کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ٹماٹر روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کے داغ دبے غائب ہو جاتے ہیں۔ انار دانے کی چٹنی روزانہ گھر میں استعمال کرنے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ گردوں کی صفائی بہترین ہوتی ہے، مسوڑھوں کی سوجن دور ہوتی ہے۔ سفید بالوں پر پیاز میں سرسوں کا تیل جلا کر لگاؤ، سفید بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔